नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस फाइल किए गए थे, तो उनमें से जो है वो लगभग 31 केसेस ऐसे थे जिनकी सुनवाई जो है वो 15 मार्च 2019 को होने वाली थी। और यहाँ पर जो है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनवाई जो है वो अगले मई तक जो है वो पोस्टपोन कर दी है। तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें जो पोस्टपोन किया गया है मई तक, तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल अपडेट है इसको शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो किसी भी तरह से आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फाइल किए गए थे, उनमें से लगभग जो है वो 31 केसेस की जो सुनवाई है वो 15 मार्च को होने वाली थी। पर यहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को जो है वो अगली मई तक पोस्टपोन कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पोस्टेज फॉर अ मई प्ले बाय ईपीएस मेंबर्स अगेंस्ट ईपीएफओ। A bench led by Chief Justice of India has posted a petitions filed by retirees and members of Employee Pension Scheme 1995 against the government and the Employee Provident Fund Organization, which administer the scheme for final arguments in May। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, फाइनल आर्गुमेंट जो है वो मई तक यहाँ पर पोस्टपोन कर दिए हैं, ऐसा बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है, द प्ली फाइल्ड बाय सेवरल अफेक्टेड पेटिशनर लीड बाय वीएन शर्मा was admitted on September 28 last year. The petitioner have claimed that 2014 amendment and 2017 circular excludes thousands from receiving their rightful benefits under Employee Pension Scheme 1995. The petitioner represents the member of the National Confederation of Retirees, that is about 42,555 former employees from the private and public sector who are members of Employee Pension Scheme 1995. And the National Confederation of Officers Association, which represents 19,118 people working in central public sector organization, most of the latter group of member of Employee Pension Scheme 1995. It is settled law that pension is not a bounty payment to which an employee is entitled to as a matter of right as a retirement benefit for service rendered by him. It is a social security provided for him to lead a dignified life. The petitioners have argued the EPFO's August 28, 2014 amendment had raised the wage ceiling amount for the scheme to 15,000 and amended the option for contribution on higher salary for existing employees, introducing a cutoff date of September 1st, 2014. It also reduces the pensionable salary considerably by averaging 60 months salary instead of 12 months salary to determine the last drawn salary amount. आगे यहाँ पर बताया गया है, अकॉर्डिंग टू पिटिशन द इफेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट इज टू एक्सक्लूड ऑल न्यू एम्प्लॉयज हु जॉइन आफ्टर सितंबर 2014 फ्रॉम जॉइनिंग द पेंशन स्कीम ऑल टुगेदर, टू एक्सक्लूड सर्वेइंग एम्प्लॉयज फ्रॉम बेनिफिटिंग फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द पेंशन स्कीम ऑन मैक्सिमम सैलरी, and to deny the benefit of opting for the scheme to retired employees if they miss the cutoff date. The amendment and cutoff date were not given sufficient publicity to allow employees to opt for pension on higher salary if they wish, says the petition. आगे यहाँ पर बताया गया है, in an October 2016 order, the Supreme Court has struck down the cutoff date clause in the amendment. 2 months later, the Central Board of Trustees of the EPFO decided to comply with the order and allow members to get the benefit of pensions on higher salary. However, on May 31st, 2017, EPFO issued a circular claim that EPS 95 members from exempt companies were excluded from the benefit of the Apex Code 2016 order, with confusion prevailing and different regional EPFO offices interpreting the order and circular differently. Another slave of petition landed in the courts. तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ये जो सुनवाई होने वाली थी 15 मार्च 2019 को इन सभी मुद्दों पर, तो इनकी जो सुनवाई है वो अगले मई तक जो है वो आगे यहाँ पर पोस्टपोन कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की केसेस के संदर्भ में ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा था, जिसके तहत जो है वो इनकी जो अगली सुनवाई है वो मई में होने वाली है, ऐसा बताया गया है।
तो इसी के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रहा था, तो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मई में जो सुनवाई होने वाली है तो इसकी जानकारी जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।